और जी एक अर्जेंट लेबल के साथ एक आई है, रिग्रेट हैविंग एन इंटरकोर्स विद माय नेबर। हाय जुनेद सर, माय नेम इज एबीसी। आई विल स्पीक टू द पॉइंट एज माय इशू इज क्वाइट सीरियस एंड अर्जेंट। आई हेल फ्रॉम एन एरिया इन कराची, मैं नाम नहीं ले रहा, बिलोंग टू अ फैमिली, मैं वो भी नहीं बता रहा डिटेल। आई एम 17 एंड लिव इन एन अपार्टमेंट विद माई फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द फैमिली, जो मैं वो भी नहीं बता रहा ताकि कोई मैच ना कर पाए। रिसेंटली a very unfortunate incident took place which has shaken me and I have lost all confidence and respect for myself. As I mentioned above, we live in an apartment of a well-known plaza. We have been living here for 5 years. We live uh, मैं फ्लोर का नाम भी नहीं ले रहा, एंड इन द सेम बिल्डिंग देयर इज अ फैमिली हु आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, एंड दे आर लाइक अंकल एंड आंटी टू अस। Uncle goes to his job, a 9 to 5 job. Auntie is a very good friend of my mother and they're like sisters. Here's the main issue. Auntie, despite being in her early 40s, is very attractive and young, and any young man would easily be attracted to her. Whenever I go out to get ghar ka saman, Auntie too needs something. She usually calls my mother and I bring her whatever she needs after taking money from her, as the uncle returns late in the evening and she's alone at home. Last week, something similar happened when she called my mother and asked her to send me upstairs to get some vegetables and other groceries. I went upstairs, took my money from her. However, she told me, वापसी में सामान रख कर चले जाना, मैं नहाने जा रही हूँ. This was something which never happened before, but at that time I thought it's normal and I didn't bother about it. She kept the main door open as our society is gated and it's quite safe. As a norm, I brought all the groceries that she needed. When I returned, the door was unlocked. I opened it and I went inside the apartment and kept the groceries on the main table with the change. Something very disgusting was about to happen now, which has changed my life. On my way back, Auntie invited me and started intimidating me. Apparently, she had finished taking her bath and I couldn't resist, and that's it. I came back shaken, and since then, she has asked me twice to come back and do it again. Sir, I was introduced to pornography by my school friends, and to say the least, I am a big addict. I don't want to discuss this with anyone, even my parents, as it's something which will make me lose all my respect in front of my parents. My parents are very supportive, and I'm soon going to end my A levels, after which my father has promised to send me abroad. Please tell me what should I do to avoid until I leave Pakistan. So, yeah, like this is something most boys used to fantasize about, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. सो एक साहब हैं, एक इलाके में रहते हैं, और आपने बाकी कहानी सुनी. आंटी जो है बिल्डिंग वाली सामान मंगवाती थी, और एक दिन ये गए तो उनका अपना ही सामान ओपन था. और फिर जो हुआ सो हुआ, जो आपने सुना. बच्चा जो है जाहिर है घबरा गया है, डर गया है, और वो उनको दोबारा बुला रही हैं और वो उसको अवॉइड कर रहे हैं. तो पहले तो बहुत शुक्रिया बेटा, आपने ईमेल की, और अच्छी बात है. जो गलत है वो है यू आर ऑब्वियसली कॉट बाय सरप्राइज, और हो जाता है, और ये बिल्कुल गलत है. अब रही बात ये कि ये पेरेंट्स को बताएं. देखिए, पेरेंट्स को बताएंगे तो नॉट ओनली जैसा कि आपने लिखा कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, लेकिन ये कि आपके उनमें भी मसला हो जाएगा. और अगर फिर वो बात खुली तो फिर वो बात कहाँ तक जाएगी और दुश्मनी ना हो जाए, और फिर अंकल जो है वो कोई इस तरह की कोई सीरियस मेजर ना लें आपके अगेंस्ट या फिर अपनी वाइफ के अगेंस्ट. आप बहुत यंग हो एंड ऑब्वियसली यू आर अ विक्टिम हेयर, तो ये बिल्कुल गलत है. अब आप यही कर सकते हो इस केस में कि आप जो भी है जितना अवॉइड कर सकते करें. अगर तो आपकी अम्मी को फ़ोन कर दिए कि ऊपर भेजें, तो आप बिल्कुल डिस्टेंस पे और घर के बाहर से बात करें, और स्ट्रिक्टली बोलें कि आपको जो चाहिए आप मुझे बता दें, और जो भी वो सामान बोलें, क्योंकि ज़ाहिर आप अवॉइड तो नहीं कर सकते. अगर घर में फ़ोन आया तो ना घर में बता सकते हैं. जो भी सामान है दरवाजे के बाहर रखें, घंटी बजा के उनको मुत्तला कर दें कि भाई ये सामान है, ये पैसे थैली के अंदर है, या वो ग्रिल से अंदर डाल दें, जो भी है, और आप चले जाएं. कोशिश ये करें कि आप उनके साथ किसी ऐसी सिचुएशन में ना हो जिसमें मतलब आप एक बंद घर में हो या एक बंद कमरे में हो, एंड ऑब्वियसली इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं. अगर वो ज़्यादा फोर्स करें तो आप उनको बता दीजिए कि भाई ये देखें, ये गलत काम है, एंड आई एम उस वक्त मैं घबरा गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन ये कि दिस इज़ रॉन्ग एंड आई कैन नॉट डू दिस. आई वुड अप्रिशिएट आप मेरे साथ ये हरकत ना करें. दीज आर माई बाउंड्रीज़, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मैं कोई गलत काम करूँ. और ये अच्छी बात है कि आप में शेम है. आजकल के बच्चे जो हैं, जैसा कि आपने ख़ुद कहा, पोर्नोग्राफी एडिक्शन है आपको, उसको भी कट डाउन करने की कोशिश करें. ट्राई टू डू सम हेल्दी एक्सरसाइजेस,
अपने आप को बिज़ी रखें, कोई हॉबीज़ में, कोई फिज़िकल फिटनेस के लिए करें, ताकि इतने थक जाएं कि नींद आ जाए, सो जाएं, फजूल ना जागे रात को, और फ़ोन वोन ना देखें, और उनको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर वो आपको मैसेज करती हैं, अगर वो आपको मैसेज करके बोल रही हैं तो उनका नंबर वगैरह ब्लॉक कर दें, या कुछ भी अगर कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू टू अवॉइड। ऑफ कोर्स शी कैन नॉट फोर्स यू, और वो रिक्वेस्ट ही कर सकती हैं, वो घर पे आके ज़बरदस्ती तो उठा के लेके नहीं जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स हर एस ऑन द लाइन एज वेल, नो पन्स। तो शी विल गेट द मैसेज कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड और यू आर नॉट ओके विद व्हाट हैड हैपेंड। और कोई धमकी वमकी मत दीजिएगा कि मैं आपके हस्बैंड को बता दूँ ही कर दूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं जानता उनको भाई वो किस तरह की हैं, कुछ चाकू वाकू ही ना मार दें, कुछ भी। आई मीन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर, शी इज़ अ बिग ट्रबल। और आप इसको इस तरह सोचें कि अगर आप खुदा ना खास्ता इफ़ यू आर इन दी एक्ट, और कभी भी होता है, कभी बंदा जल्दी घर आ जाता है, या कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई कुछ आ जाए और आपको इस हालत में पाता, तो सोचे कितना मसला हो सकता था। आपकी जान खतरे में आ सकती थी, उनकी जान खतरे में आ सकती थी। इट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। और रॉन्ग के साथ साथ बहुत से लोग चले राइट रॉन्ग को नहीं देखते ना, लेकिन इट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू डू। लोग ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, इट्स अ ब्रीच ऑफ सच ह्यूज ट्रस्ट। और उसमें फिर जो है ना, लोग कोई सीरियस मेजर्स लेने से भी कतराते नहीं है, गोलियां मार देते हैं लोग, चाकू मार देते हैं। आई डोंट नो मैन, अल्लाह रहम करे भाई। तो दूर रहें इस तरह की सिचुएशन से। जितने लोग सुन रहे हैं, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। और बाकी बस ये कि आप तैयारी करें बाहर जाने की, और अब ये नहीं बाहर जाके शुरू हो जाओ, मगर ये कि बाहर सौदा वौदा नहीं लाना, बाहर सब अपना सौदा खुद लाते हैं। अपने सौदे का ख्याल रखना, और टेंशन नहीं लो, बस अवॉइड करो और दूर रहो उनसे, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।